Bismillahirrahmanirrahim. Student, today I am going to have the lectures on net present value. So, as it is obvious from the basically the word net present value, it is the difference in between two present values. One is present value of cash inflows and present value of cash outflow. Outflow means anything comes from your pocket is an outflow, anything comes towards your pocket is the inflow. For example, अगर आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, like अगर आपने 300,000 आपने कहीं इन्वेस्ट किया, so this amount of $300,000 is the cash outflow. एंड जो आप पीरियोडिकली जो आपको अमाउंट मिल रही होगी, पेमेंट्स आपको हो रही होंगी या विड्रॉल्स आप ले रहे होंगे, दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सो इट मीन्स कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम डिनोट किससे कर रहे होते हैं, एनपीवी से. और अगेन इसके अंदर इस जो क्वेश्चंस हैं वो टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू हैविंग equal amount of payments or equal periodical payments, and one is for the question regarding one with the unequal payments. Like अगर मैं आपसे कहूँ कि for example you are going to invest $100,000 and you are supposed to getting $20,000 per year for the period of let's say 6 years. So $20,000 per year for the period of 6 years is then as an equal amount of payment, which is said to be the annuity. So यहाँ पर differently इसको solve करेंगे. And one is कि आपको first year 20,000 मिला, second year 30,000, fourth year 50,000 मिल रहा है, third year 70,000 मिल रहा है. Different payments हैं. So अगर different payments होंगी तो उनको जो उनकी net present value है उसको calculate करने के लिए भी सेपरेटली इसको कैलकुलेट करेंगे. सो याद रखेंगे हम यहां पर जो कैलकुलेट करेंगे एनपीवी, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, where this present value, and it has again it has two type of questions. One is NPV with equal periodical payments, and this NPV, and one is for with unequal periodical payments. सो इन दोनों को हम बेसिकली सेपरेटली डील करेंगे. वन इज विथ पीरियोडिकल पेमेंट्स, इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट्स, एंड वन इज विथ unequal periodical payments. So in order to calculate NPV with equal periodical payments, NPV is equal to PV R 1 minus 1 over 1 plus I to the power n divided by I minus PV outflow. क्योंकि इस तमाम क्वेश्चंस में इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक ही आउटफ्लो दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है. डायरेक्टली आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू गिवन है. सो मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. वो सिंपली आपने वो वैल्यू जो है वहां से पिक करके जस्ट यहाँ पर लिख लेनी. लेकिन जो अनइक्वल है उसके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, एनपीवी is equal to FV1 divided by
1 plus I to the power 1 plus FV2 1 plus I to the power 2 plus FV3 1 plus I to the power 3 and so on. अब जितने फ्यूचर वैल्यूज यानी जो भी आपके पास पीरियोडिकल अमाउंट दी हुई होंगी दैट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर 1 अगर 1 ईयर के बाद है, 2 ईयर्स के बाद है, 3 ईयर्स के बाद है, 7 ईयर्स के बाद है तो 1 प्लस आई टू द पावर 7 हो जाएगी. दिस बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. इसमें से माइनस क्या कर देंगे, अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. Right? So in this manner with these two formula, one for periodical equal periodical payment and one for unequal periodical payment, you can easily calculate the net present value. Okay, थोड़ा आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा जब हम ये एक्सरसाइज की एक दो सवाल करेंगे. Then you will have much more better idea from how to solve these questions. Exercise 8.5 का question number 1 अगर देखें, it says कि determine whether the investment project depicted by the cash flow diagram satisfies the minimum desired rate of return criteria. What is the NPV at the indicated interest rate? Number 1 question है cash flow depicted in figure 8.14 10% पर ईयर. तो नीचे एक फिगर गिवन है और उसके अंदर जो है कुछ इस तरह से वैल्यूज गिवन है आपके पास, राइट. और वैल्यू जो लिखी हुई है लाइक $2 million और फर्स्ट ईयर जो वैल्यू है दैट इज $600,000, राइट. सेकेंड ईयर अगेन $600,000, third year again $600,000, fourth year में भी again $600,000 और fifth year again $600,000. ये पेज नंबर 337 पे देखें एक्सरसाइज 8.5 और उसके अंदर ये आपके पास जो है ये सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स गिवन है. नाउ ये जो अमाउंट है यहां पर अगर आप देखें तो एक नेगेटिव साइन भी लिखा हुआ होगा. माइनस साइन ये डिपेक्ट करता है कि ये आउटफ्लो है यानी आपके पास से अमाउंट जा रही है. सो जो चीज आपके पास से निकल के जा रही होती है, जो आपके पॉकेट से आ रही है, वो बेसिकली आपका क्या है, आउटफ्लो है. सो उस आउटफ्लो को जस्ट शो करने के लिए नेगेटिव साइन. नेगेटिव आपने कहीं यूज नहीं करना. सम ऑफ द टाइम लोग ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं. ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, कैश आउटफ्लो है. माइनस का मतलब भी क्या है, ये कैश आउटफ्लो है. लेकिन जो आपको मिल रही है अमाउंट दैट इज $600,000 पर ईयर. सो ये आपको जो अमाउंट मिल रही है इट इज ए पीरियोडिकल पेमेंट. अपेरेंटली देखा जाए तो आपको मिलेगा $3 million. आपने इन्वेस्ट किया $2 million. लेकिन जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं यानी जिसकी वजह से वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से डिस्काउंट आ रहा होता है, वो आपको पहले से गिवन होती है या पहले से आपको बता दिया जाता है. अज्यूम कर लेते हैं कि ये इतने % है. लाइक इन दिस केस जो इंटरेस्ट रेट गिवन है दैट इज 10% पर ईयर. सो इसका मतलब है कि आपको इसके ऊपर 10% क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिलता जाएगा. यानी ये 600,000 करंटली क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी इस 600 की. या आप याद करें 8.4 हमने एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे. सो ये रिड्यूस होती जाएगी तो टोटल जो आपको इनफ्लो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगेन क्योंकि ये सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स है तो हम यहां पर यूज करेंगे, जब सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो वे लिखेंगे we know that NPV यानी net present value is equals to present value of inflow minus present value of outflow, right? So NPV is equals to inflow. Since
these are the equal periodical payments, so मैं directly use करूंगा r 1 minus 1 over 1 plus I to the power n divided by I, where 600,000 is r, I with the interest rate given to you, that is 10%, n is number of years, that is 5 years, minus present value of outflow. outflow डायरेक्ट आप यहां से $2 million लिखेंगे क्योंकि ये करंट पॉइंट पर है, इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस पॉइंट पर, इस 600 की भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इस 600 की भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो है ही करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट इज व्हाई हम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो लिख देंगे, दैट इज $2 million, राइट। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, NPV is equals to R की वैल्यू 600,000, 1 minus 1 over 1.1 to the power 5, क्योंकि 10% है तो 0.1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 0.1, माइनस क्या हो जाएगा इसमें से 2,000, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे सो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 472.06 minus $2 million. Now net present value आपका क्या आ गया, net present value is equal to $274,472.06. क्योंकि आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट बेहतर है कि कर लें। अगर ये जवाब नेगेटिव में आ जाता, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे भी आपके पास इनफ्लो आपका कम आता, तो ऑब्वियस है कि फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो ये एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि एनपीवी इज अ काइंड ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और उसके थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। $2 million इन्वेस्ट किया, आपको अमाउंट कितनी मिली, 600,000, अपेरेंटली तो यही लिख रहा था कि आपको $3 million मिलेगा, लेकिन एक्चुअली वो मिल रहा है $2.274472 million। जब आपने कैलकुलेट किया एनपीवी तो इट इज इक्वल्स टू 274,472, तो आपको बेसिकली 2,74,000 का जो है तकरीबन प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सो इन दिस मैनर यू कैन कैलकुलेट वेदर, अब आपके पास यहाँ पर 500,000 लिखा जाए, 700,000 दिया, इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली डिस्काउंटेड रेट जो है आपको डिफरेंट हो, लेकिन ऑब्वियसली आपने इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लेना है। नाउ अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें एंड 4 टिल क्वेश्चन नंबर 6, सो वहां पर बेसिकली अनइक्वल पेमेंट्स गिवन है। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व अनइक्वल पेमेंट्स एंड ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगेन जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली आप क्या लिखेंगे, एनपीवी वी know that NPV is equals to present value of inflow minus present value of outflow, exactly. Now in this case जब आप inflow की बात करेंगे तो अब आपके पास inflow सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट नहीं है, इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट्स नहीं है, सो देन यू हैव टू कैलकुलेट थ्रू फ्यूचर वैल्यू। वो याद करें, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू द पावर n। सो फर्स्ट जब मैंने 8.4 स्टार्ट किया था प्रेजेंट एनवटीज एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू, सो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने सेपरेटली कैलकुलेट करनी है तो इस तरह से कैलकुलेट करें। तो सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, FV1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू द पावर 1 प्लस FV2
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 2 प्लस, अब यहां पर कितनी पेमेंट्स हो रही हैं 6, तो ये बेसिकली 1 ईयर के बाद 250,000, ये एक फ्यूचर वैल्यू 1 हो गई। 2 इयर्स के बाद मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी 300,000, ये FV 2 हो जाएगी। 3 इयर्स के बाद मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी 500,000। सो आपने बेसिकली इसी तरह यहां लिखते जाना है FV3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर 3 प्लस FV4 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस FV5 1 प्लस आई टू द पावर 5 प्लस FV6 1 प्लस आई टू द पावर 6। ये तो हो जाएगा आपके पास इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मैंने आपसे कहा कि ये क्योंकि करंट पॉइंट पर है प्रेजेंट वैल्यू ही है, सो इसको डायरेक्टली आपने लिख लेना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को, दैट इज 1300,000, राइट। सो 1300,000 डायरेक्टली आप वहां पे लिख लेंगे। सो ये क्योंकि नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा होता है कि ये आपके पास क्या है आउटफ्लो। देखें एक चीज याद रखें, मैं अभी उस पर जा नहीं रहा, हो सकता है कि चौथे ईयर आपको ख्याल आए कि कुछ इन्वेस्टमेंट और कर दी जाए, तो यहां पर भी एक अमाउंट आ सकती है आउटफ्लो की, लेकिन इसका फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन ये इंशाल्लाह जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्सेज करेंगे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस वगैरह, तो वहां आपको कोई इसको समझाया जाएगा आपको। अभी आपके लिए मैथमेटिक्स की हद तक यहाँ तक काफ़ी है कि आपको आउटफ्लो आपके पास एक ही गिवन है, और वो क्योंकि करंट टाइम पर है प्रेजेंट वैल्यू है, तो डायरेक्ट आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कॉपी कर लेनी है। अब एक चीज याद रखें, देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 500,000 गिवन ना होता, हो सकता है आपको फोर्थ पेमेंट ही ना होती, तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये 0 हो जाता, लेकिन डजंट मीन कि इसको 4 कर देंगे फिर हम, ये 5 ही रहेगा, लेकिन ये जो फोर्थ ईयर वाला फैक्टर है वो 0 हो जाता है इन केस कि अगर यहां पर कोई अमाउंट गिवन ना हो। सपोज यहां पर आपको पेमेंट ही नहीं होती, तो फिर ये फैक्टर क्या हो जाता आपके पास 0 हो जाता। लेकिन अभी तो सारे फैक्टर्स गिवन है, सारे वैल्यूज गिवन है, आप सिंपली पुट करें और कैलकुलेट करें। सो FV1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, FV1 क्या लिखा आएगा 250,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, आई की वैल्यू यहां पे दी हुई है 9%, तो ये हो जाएगा 1.09, ठीक है, 1 प्लस 0.09 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 प्लस FV2 कितना लिखा हुआ है 300,000 डिवाइडेड बाय 1.09 की पावर 2 प्लस 500,000 1.09 की पावर 3 प्लस अगेन 500,000 डिवाइडेड बाय 1.09 की पावर 4 प्लस 350,000 FV5 क्योंकि 5 इयर्स के बाद ये मिल रहा है, सो इट इज अ फ्यूचर वैल्यू। सो 350,000 डिवाइडेड बाय 1.09 की पावर 5 प्लस 100,000 डिवाइडेड बाय 1.09 की पावर 6, ये सारी आ जाएगी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे 1300,000। गॉट इट। सो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। सो अब यहां पर ये मैं रिमूव कर देता हूं ऊपर इसको, और यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। सो एनपीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनपीवी इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मैंने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, जब 250,000 डिवाइडेड बाय 1.09 आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 229,357.7 प्लस सेकंड वैल्यू आ जाएगी 252,503.9 प्लस थर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 3861.00 प्लस, मैं डेसिमल के बाद वैल्यूज को थोड़ा इग्नोर कर रहा हूं, 3542
07.9 प्लस फिर आ जाएगी वैल्यू 228 प्लस 596 यानी 59,626.7 ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई सारी और माइनस क्या कर देंगे आउटफ्लो दैट इज 1300,000. सो जो आंसर आएगा एनपीवी इज इक्वल टू ये टोटल इसको करेंगे तो ये आएगा 156,017.8 माइनस 1300,000 विच इज इक्वल टू या आंसर आपके पास आ जाएगा 26,017.8 डॉलर्स. सो एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है. सो इसका मतलब ये है कि आपके पास बेहतर है कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अराउंड आपको $260,000 का यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा. स्टूडेंट अगेन मैं थोड़ी सी एक चीज आपको दोबारा क्लियर कर दूं. इन केस ये फोर्स वैल्यू जो वहां पर टाइमलाइन में 500,000 थी और गिवन नहीं होती तो आपने सिर्फ इसको इग्नोर कर देना है. यानी यहां पर ये कुछ भी नहीं आएगा, यहां जीरो आ जाएगा इसकी जगह पे. यानी ये जो फोर्थ वन आ रहा था 1 2 3 4 ये वाली वैल्यू क्या लिखेंगे यहां पर जीरो. लेकिन बाकी की कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम. ये नहीं करेंगे कि ड्यूरेशन चेंज कर दें आप. ये 5 है तो ये 5 ही रहेगा, यहां पे 6 है तो ये 6 ही रहेगा इनकी वैल्यू. सो वो चेंज नहीं होगी. In this manner, you can calculate the net present value with unequal amount of an unequal series of payments. So hopefully ये आपको क्लियर होगा. इंशाल्लाह जब सेशन हम कंडक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर भी इसको मज़ीद मैं इसको अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे.